Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हजारों हजार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो जैसे कि गोली की जो स्पीड होती है ना, एक गोली की जो स्पीड होती है उस स्पीड से जो है कमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ये कर्मशिला, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जीएस फाउंडेशन कोर्स है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे टाइमर चल रहा है, 29 डेज लेफ्ट हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नोट्स जिसको हम लोग एक बार एक चैप्टर को 2-3 घंटे में रिवाइज कर सके, ये कंसाइज नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे, हमारे द्वारा फैकल्टी के द्वारा बनाए गए जो है आपको नोट्स मिलेंगे। डिलेड आंसर राइटिंग इवोल्यूशन नहीं होगा। एक हफ्ते बाद जब हम चेक करके बच्चे को देंगे, एक हफ्ते में बच्चे 50 मिस्टेक कर लेंगे तो फिर इंप्रूवमेंट का चांस खत्म हो जाएगा। 1750 नंबर जो मेंस के हैं उसी के बेसिस पे आपके रैंक डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे आपका टाइटल डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सर्विसेज डिसाइड होगी। ये तीनों चीजें डिसाइड होगी आपके 1750 नंबर पे। जैसा आप लिखोगे वैसा ही अंक पाओगे। एडीबीसी में क्या डिफरेंस है सर, प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है सर, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री क्यों बनाया गया है, इसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, इस सवाल को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेयर मिनिमम जो अमाउंट है उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप देंगे अप टू 50%। ये हमने थीम रखा है। कर्मशिला हमारे यूपीएससी का थीम है, ज्ञानशिला यूपीपीसीएस का थीम है और आधारशिला हमारा एनसीईआरटी का थीम है। यहाँ पे आप मेंटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप क्लिक करोगे, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, टारगेट एग्जाम, मैसेज आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर दो, ये आप मेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू फेस एंड विच वी आर फेसिंग करेंटली। आने वाले समय में भी और जो फेस कर रहे हैं वो भी, पीछा जो हो गया उसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी और आने वाले समय की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है महेशन आईएएस। Hello everybody, I welcome you all on Maheshan IAS Academy. The dream which we have seen for you, and that's why we have keep our tagline, your rank is our responsibility. We are exploring our website, our social media platforms, either they are YouTube channel, Instagram, Telegram and all that, Facebook as well. We will be covering all the possible efforts we have made for you and all the aspects of the website, all the aspects of the orientation class, that what we are going to provide you during thorough preparation of the civil services. Many students have many queries during this preparation. Aspirants are following too much of chunk. They need not to inhale. But the one-stop solution we have come up with, that is called Maheshan IAS. How we have come up with this? We have been through many of the institutes, either they are offline or online, and we found the same problems of the students and we have came up with a solution. The one-stop solution, none other than Maheshan IAS Academy. We will be exploring the website as well, the programs under the website. You will get some totally free initiatives over the YouTube and the website also. And we have made a very brilliant program that we are going to explore in front of you. Just look for a while, and later on I will hand over the mic to one of my colleague or my friend Shantanu Raj, and he will explore more about Maheshan IAS Academy. So without wasting any more time, we are going to discuss all the problems that you are facing currently and all the positive solution or possible solution which we have come up with. So Shantanu Raj will explore all the solutions along with the problems that you definitely following in the preparation of this civil services examination. Shantanu. माइक चल रहा है सर? Thank you so much sir for giving me this opportunity. So this side your Shantanu, your history and polity educator. I will be taking classes for history and political science in GS Foundation course as well as State PCS course. जब हमने महेशन आईएएस की न्यू रखना शुरू किया था तब हमारे दिमाग में 2-3 बातें ही चल रही थी। बातें ये चल रही थी कि कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब हमने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में घूमना शुरू किया। हमारे लिए जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम करने के बाद, उन एक्सपीरियंसेस को जब हमने टेबल पे लाना शुरू किया तब हमें रियलाइज हुआ कि रियली देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेस तो कर ही रहे हैं और आने वाले समय में भी फेस करेंगे। तो जो फेस कर रहे हैं उसको तो नहीं बदल सकते, जिन्होंने फेस कर लिया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में कोई एक्सपीरियंस जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, उसके लिए क्या सोल्यूशन बनाया जाए। एक डेट था 20 मई 2025, ये डेट हमने सोच रखा था
कि इस डेट को हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। हमने इस डेट को काफ़ी डिले किया, 2 महीने हमने इस डेट को आगे बढ़ाया, जस्ट बिकॉज हम चाहते थे कि हम और बेहतर तरीके से सामने आए आप लोगों के। हमने वेबसाइट को अपने 2-3 बार बदलवाया, हमने अपनी चीज़ों को बार बार चेंज करवाया, जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एडटेक इंडस्ट्री में पिछले काफ़ी 4-5 सालों में, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड टाइम, काफ़ी बूम आया, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर नेग्लेक्टिंग बाय द टीचर्स इन द ऑनलाइन क्लासेस, ये प्लेटफॉर्म जो है, एडटेक इंडस्ट्री जो है, वो थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और इंडस्ट्री क्या फेस कर रही है? सबसे पहले तो हमने ये सोचना ट्राई किया था, तो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, लगभग 30-40 पॉइंट्स हमने बनाए। 30-40 पॉइंट्स को जब हम एनालिसिस किए तब हमें समझ में आया कि देयर आर रियली सम मेजर प्रॉब्लम्स इन द एडटेक इंडस्ट्री। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको हमने नोट डाउन किया है यहाँ पे। अच्छा, आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, एडटेक इंडस्ट्री में हम जाने जाते हैं कि सब कुछ पीपीटी पे चलता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाओ और उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में बता दो, और हिंदी में लिखा हुआ है तो बस उसको पढ़ दो। क्लासेस का मतलब सिर्फ इतना ही रह गया है कि उसको ट्रांसलेट करना है। टीचर ना लिखना चाहता है, वो लिखना नहीं चाहता, लेकिन एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा जो है मेंस में जाएगा और 250 पेपर 1750 नंबर जो है वो लिख के आएगा। ये एक्सपेक्टेशन खराब है टीचर की तरफ से। ऐसा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। जो अब हम खुद नहीं लिखना चाहते, एक पीपीटी बना के ला के यहाँ पे जो है आपके साथ क्लासेस लेना चाहते हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 250 आंसर जो है, 250 वर्ड्स का आंसर, 150 वर्ड्स का आंसर आप लिखो। ये सबसे पहला चेंज हमने लाया है। हम पीपीटी का यूज नहीं करेंगे, हम हैंड रिटेन नोट्स या फिर हैंड रिटेन चीजों का ही यूज करेंगे। इन द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हम सिर्फ पीपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, देयर आर सम मेजर की प्रॉब्लम्स, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरेक्शन। लैक ऑफ इंटरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ पे, जब भी हम कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, कोर्स लेने के बाद मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, किसी भी डिवाइस पे जब हम उसको देखते हैं तो डिवाइस सामने रहता है, बैठते हम इधर है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता विद द टीचर। इवन हम कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चिट चैट होता है। जो बच्चे के जेन्युइन डाउट्स होते हैं उसको टीचर ले नहीं पाता, जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अननेसेसरी डाउट्स पूछेंगे या फिर अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ देते हैं। इसमें बच्चों के जो जेन्युइन डाउट्स हैं वो नहीं सॉल्व हो पाते। साथ ही साथ टीचर उनके साथ कभी इंटरेक्ट करता ही नहीं है, वो बस लाइव क्लास में आता है, क्लास लेता है और बच्चे के पास रिकॉर्डिंग रहता है और बच्चा रिकॉर्डिंग देखता है। ये लैक ऑफ इंटरेक्शन का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप जानो। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी, रेगुलर क्लास। ऑन एवरी सैटरडे वी विल हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द फैकल्टी और विद द मेंटर। ऑन एवरी संडे वी विल हैव अ टेस्ट। ये हमारा शेड्यूल होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास, एवरी सैटरडे वी विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द फैकल्टी और द मेंटर, और हर एक संडे को हमारी क्लास होगी। यानी कि इंटरेक्शन है यहाँ पे। इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है कि बच्चा डिमोटिवेट फील ना करे, बच्चा अकेला फील ना करे, लॉनलीनेस उसको फील ना हो, क्योंकि इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी लंबा समय हमें तय करना है। लगभग 1 साल तो हमारे एग्जाम चलते हैं, उसके पहले 1 साल की जीएस की तैयारी, 3-4-5 महीने 6 महीने हमारी ऑप्शनल की तैयारी। ये 2-2.5 साल की जो तैयारी है, इसमें बच्चा अकेला ना फील करे ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि देखो, दिल्ली सब कोई आ नहीं सकता ना पढ़ने के लिए, देश के कोने कोने तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बच्चा नेग्लेक्टेड फील ना करे, बच्चा अकेला फील ना करे, इसलिए हमने इंटरेक्शन वाली चीज रखी है अपने यहाँ। एवरी सैटरडे वी विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन, चाहे वो क्लास कितनी भी लंबी हो, लेकिन हम इंटरेक्शन उसको साथ बच्चे के साथ करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टीचर्स आर नॉट एक्सेसिबल। मैंने बताया आपको कि क्लास तो लेता है टीचर, उसके बाद से बच्चे के पास रिकॉर्डिंग रह जाता है, उसके बाद से टीचर और बच्चे के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बच्चा टीचर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है, और बच्चे के पास रह जाता है सिर्फ एक नंबर, और उस नंबर पे फोन करो तो सिर्फ स्टाफ मेंबर उठाएंगे या फिर कोई भी टेलीकॉलर या फिर कोई काउंसलर उठाता है फोन, नॉट द टीचर्स। हमने अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करोगे, अबाउट अस सेक्शन में, अबाउट अस सेक्शन में जो भी फैकल्टी होंगे हमारे, उन सारे के पर्सनल मोबाइल नंबर हम उसमें डालेंगे। पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं विद द फैकल्टी। ये दोनों ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि सर मैं इस टाइम में आपसे बात करना चाहता हूं, सर भी अवेलेबल है उस टाइम में, आप उनसे बात कर सकते हैं। इवन डायरेक्ट नंबर है, आप उनके साथ मैसेज पे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी टीचर्स आर एक्सेसिबल इन दिस प्लेटफॉर्म।
थर्ड इज हैरेसमेंट और स्पैम कॉल्स। अच्छा, टीचर्स आर आजकल तो टीचर स्टार टीचर बन गए हैं। देखो ना, हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े टीचर्स हुए, कौटिल्य से लेके एपीजे अब्दुल कलाम से लेके विवेकानंद तक, किसी ने क्लेम नहीं किया आज तक कि मैं स्टार टीचर हूं। लेकिन आजकल के 2 4 5 10 टीचर जो हैं, दे क्लेम देमसेल्फ एज अ स्टार टीचर। हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई स्टार टीचर नहीं होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट ही होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल पीपल होंगे। दे आर नॉट स्टार। टीचर कभी स्टार नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। इतिहास में जाके देखो, प्राचीन इतिहास हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कोई तुम्हें स्टार टीचर नहीं देखने को मिलेगा। ये आजकल 2025, 2024, 2023 का ही जो समय है, यहां से स्टार टीचर निकल रहे हैं। आई डोंट नो कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना पढ़े लिखे हैं कि वो दे क्लेम देमसेल्फ एज ए स्टार टीचर। आई नेवर क्लेम माई सेल्फ एज ए टीचर, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, अ नॉर्मल स्टूडेंट हु हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपने जीवन में इस कम समय में जितना भी मैंने नॉलेज गेदर किया है, 20, 25, 26 साल की उम्र तक, 27 साल की उम्र तक, जितना भी छोटा नॉलेज मैंने गेदर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट आई एम जस्ट ए स्टूडेंट। आज भी मैं पढ़ता हूं, टीचर नहीं हूं मैं। तो टीचर क्लेम करना एक बहुत बड़ी बात है, और स्टार टीचर क्लेम करना, तो उसकी बात तो हम कर ही नहीं सकते। जो प्रॉब्लम है हैरेसमेंट और स्पैम कॉल्स की, देयर आर मेनी एडटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो खत्म हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, स्पैम कॉल्स, फोर्सफुल एडमिशन। इसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हुए, हैरेसमेंट हुआ बच्चों का, और आज वो एडटेक इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है। आज वो एडटेक इंस्टीट्यूट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, उनका ग्रोथ रेट काफी निगेटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। हम अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके का ना स्पैम कॉल्स, ना ही किसी तरीके का फोर्सफुल एडमिशन, ये आपका कॉल होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है कि आप हमें चूज करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे तरफ से किसी भी तरीके का फोर्सफुल परसुएशन नहीं होगा आपके लिए, ये क्लियर है। और ये सब चीजें आज हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं, ये पहला वीडियो है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और ये आज इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि कभी भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर इन सब चीजों को प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो आप क्लेम कर सके इस वीडियो का यूज करके कि आपने सर हमसे ये प्रॉमिस किया था कि स्पैम कॉल्स नहीं होंगे, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि हैरेसमेंट नहीं होगा बच्चों का, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आप इस वीडियो का यूज करके आप हमसे क्लेम कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और हम उस समय जवाब देने के लिए उत्तरदायित्व होंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम जवाब दें। इसलिए हम आज बता रहे हैं आपको कि किसी तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट नहीं करने वाले हैं, और ना ही हम होने देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रॉब्लम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हजारों हजार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो जैसे कि गोली की जो स्पीड होती है ना, एक गोली की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से जो है कमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बच्चों के कमेंट्स को टीचर ले नहीं पाता जस्ट बिकॉज कि हजारों हजार बच्चे हैं, बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने रखा है 250 स्टूडेंट्स ओनली। अभी हम जो है एक साल तक 250 स्टूडेंट्स, एक बैच पे सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के साथ ही हम शुरू करेंगे, नॉट मोर देन 250 स्टूडेंट्स। इन ईच बैच वी विल हैव ओनली 250 स्टूडेंट्स ओनली। मार्क माई वर्ड, 250 स्टूडेंट्स ओनली फॉर दिस सेशन। 2025-2026 के सेशन में हमने बस टारगेट रखा है 250 बच्चे पर बैच, ठीक है। नेक्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंसाइज नोट्स। प्रॉब्लम प्रिपरेशन में तब आती है जब प्रीलिम्स का एग्जाम हमारे नजदीक होता है, सर पे होता है, और हमारे पास काफी मोटी नोट्स हो, काफी लंबे लंबे नोट्स जो हमने बना रखे हैं वो उस समय काम नहीं आता। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंसाइज नोट्स, वैसा नोट्स जिसको हम एक हफ्ते में, 15 दिन में प्रिपेयर कर सके, ऐसा नोट्स जिसको हम लोग एक बार एक चैप्टर को 2-3 घंटे में रिवाइज कर सके। ये कंसाइज नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे, हमारे द्वारा, फैकल्टी के द्वारा बनाए गए जो है आपको नोट्स मिलेंगे, और ये सारे कंसाइज नोट्स होंगे, चाहे वो मेंस का हो या फिर प्रीलिम्स का हो, किसी भी पेपर का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, करंट अफेयर हो, फॉर एवरी सब्जेक्ट वी विल हैव अ कंसाइज नोट्स। इसके लिए हमने एक अलग सा सेक्शन ही बना रखा है अपने वेबसाइट पे, डिजिटल लाइब्रेरी करके, और वो डिजिटल लाइब्रेरी आप एक बार परचेज करेंगे, उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। उसमें लाइफ टाइम तक जितने भी हम लोग नोट्स, जितने भी ई बुक्स, जितने भी कंटेंट उसमें डालेंगे, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। ये कंसाइज नोट्स का जो है प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ असेसमेंट एंड फीडबैक। बच्चा जब प्रिपरेशन करता है ऑनलाइन क्लासेस में, उसको असेसमेंट या फीडबैक नहीं मिल पाता ताकि वो इंप्रूव कर सके खुद को। उसको ये नहीं पता चलता वो कितने पानी में है अभी, उसकी प्रिपरेशन
कहां तक पहुंची है, कितने परसेंटेज तक वो प्रिपेयर है, 40% प्रिपेयर है, 50% प्रिपेयर है, कितना प्रिपेयर हो चुका है वो एग्जाम के लिए। ये असेसमेंट नहीं होने के कारण जो है बच्चा अपना एक ख्याली पुलाव बनाता है, उसको लगता है कि हम तो प्रिपेयर हैं, हम तो एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन असलियत हकीकत कुछ और रहती है। ये असेसमेंट और प्रॉपर फीडबैक जो है एक रिपोर्ट कार्ड, असेसमेंट रिपोर्ट के साथ हम उसको मंथ वाइज और वीक वाइज प्रोवाइड कराएंगे। पूरे वीक में और मंथ में उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे उसके परफॉर्मेंस की, देन वी विल गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ताकि उसको पता चल सके कि लेकुनाज कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं उसके अंदर, प्रिपरेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स उसके छूट रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को उसने पूरे अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। ये असेसमेंट और ये फीडबैक हमारे तरफ से बच्चे को दिया जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि ऑन एवरी सैटरडे वी विल हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में इनरोल करेगा। लैक ऑफ पीयर टू पीयर डिस्कशन, बच्चा अकेले जब तैयारी करता है लॉनलीनेस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने ये रखा है कि ऑन एवरी वीकेंड्स, है ना, वीक डेज में तो नहीं लेकिन वीकेंड में हम कोई फन एक्टिविटी, कोई ग्रुप डिस्कशन, कोई रेलेवेंट इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, कोई आईआर से रिलेटेड टॉपिक हो, कोई जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो, सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक हो, उस पर हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे ताकि सारे बच्चों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो पीओवीज हैं, वो सामने निकल के आए। अल्टीमेटली एक बार उनको जाके 5 बोर्ड मेंबर के सामने जो है उनको एक बार अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज को रखना है। दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो ओरेटरी स्किल डेवलप होनी चाहिए। और इसके लिए हमने क्या रखा है, एक ग्रुप डिस्कशन, एक पीयर टू पीयर डिस्कशन का भी एक प्रोविजन हमने अपने प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं हर एक बच्चे को। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ प्रॉपर पीवाईक्यू डिस्कशन विद इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने हमें सिर्फ 2 चीजें दे रखी हैं, इन 2 चीजों के थ्रू ही हम यूपीएससी को समझ सकते हैं। पहली चीज है हमारी पीवाईक्यू और दूसरी चीज है सिलेबस। इसके अलावा यूपीएससी ने हमें कुछ नहीं दे रखा। ये 2 चीजों को जब हम समझ पाएंगे, ये 2 चीजों को जब हम समझ लेंगे, तब हम जानेंगे कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, पैटर्न क्या है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। ये समझने के लिए हमको पीवाईक्यू को समझना पड़ेगा, और पीवाईक्यू को समझने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, इसीलिए हमने इन डेप्थ एनालिसिस लिखा है। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम हर एक साल के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो करेंगे ही करेंगे, फ्रॉम 2015 टू 2025। पिछले 10 साल के, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो या फिर लैंग्वेज पेपर का हो, हर एक पेपर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन कैसे होगा, तो डिस्कशन बहुत ही डिटेल्ड होगा विद देयर मॉडल आंसर। और ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन होगा ये टॉपिक वाइज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट पढ़ा है, आपने लोकसभा पढ़ा है, राज्यसभा पढ़ा है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, इमरजेंसी पढ़ा है, तो इमरजेंसी से रिलेटेड 2015 से 25 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए उसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग। वो उसके सोर्स क्या थे, वो जो क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट से, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोर्स क्या, क्या वो लक्ष्मीकांत सोर्स है, क्या वो डीडी बसु सोर्स है, क्या वो सुभाष कश्यप सोर्स है, आखिर सोर्स क्या है उसका, या फिर करंट अफेयर से आया है, कोई करंट डेवलपमेंट की वजह से वो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मान लो 2 दिन पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिजाइन किया, उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल, करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से आर्टिकल जो हैं वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सबको भी हम प्रॉपर टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है डिलेड आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन। हमने ये पाया, ट्रस्ट माय वर्ड्स, हमने ये प्लेटफॉर्म बनाने के पहले कम से कम 30-40 इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो करोल बाग के हो, चाहे वो मुखर्जी नगर के हो, चाहे नोएडा के हो, इवन जो ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है, हमने सारे प्लेटफॉर्म को बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू किया। डिटेल्ड रिव्यू में हमें पता चला कि जो कॉपी चेकिंग है, जो आंसर इवैल्यूएशन है, वो काफी लेट है। इवन जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी इंस्टीट्यूट का, उसमें 5 to 7 डेज जो है कॉपी इवैल्यूएशन टाइमिंग है, उसको हमने कम करके मैक्सिमम 2 डेज रखा है। हमारा टारगेट है 1 दिन में खत्म करने का, लेकिन इन द वर्स्ट केस हम 2 दिन लेके चल रहे हैं। 2 दिन में आपकी जो आंसर कॉपी है उसको इवैल्यूएट करके हम आपको देंगे। इसके लिए तो हमने जो है प्लेटफॉर्म पे, अपने वेबसाइट पे एक फ्री इनिशिएटिव भी शुरू कर रखा है आंसर राइटिंग का, उसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो डिलेड आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद जब हम चेक करके बच्चे को देंगे, 1 हफ्ते में बच्चे 50 मिस्टेक कर लेंगे, तो फिर इंप्रूवमेंट का चांस खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते में। फिर वो 1 हफ्ते बाद फिर बच्चा इंप्रूव करेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं
कि बच्चे ने आज मिस्टेक की है, उसको कल उसको पता चल जाए फीडबैक के साथ कि सर मैं ये पॉइंट्स और लिख सकता था, इस वर्ड्स के जगह पे मैं ये वर्ड यूज कर सकता था, अच्छा बॉडी में ये पॉइंट ऐड हो सकता था, कंक्लूजन को मैं और बेहतर तरीके से बना सकता था, इंट्रोडक्शन को मैं और बेहतरीन तरीके से लिख सकता था। तो ये चीज जो है हम अपने आंसर राइटिंग में प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको इवेल्युएट करके वापस करेंगे। उसके बाद से अनअवेलेबिलिटी ऑफ मेंटरशिप फैसिलिटी। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटरशिप फैसिलिटी नहीं है और मेंटर नहीं होगा। देखो अर्जुन को भी एक मेंटर की जरूरत पड़ी थी और वो मेंटर थे कृष्ण। ये मेंटरशिप फैसिलिटी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वन स्टूडेंट वन मेंटर का कॉन्सेप्ट है हमारा। हर एक स्टूडेंट को मेंटर मिलेगा और वो मेंटर जो है उसकी डेली ट्रैकिंग करेगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा उस बच्चे का और ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करेगा हर एक बच्चे को। अगर वो चाहे उसके पेरेंट्स, तो पेरेंट्स भी उस बच्चे का डिटेल्ड रिपोर्ट ले सकते हैं। आजकल तो बच्चे 10th और 12th क्लास में ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय मेंटरशिप की खास जरूरत है क्योंकि इनिशियल फेज में हमें समझ नहीं आता कि हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है। जो चीजें हम बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हजारों वीडियोज पड़े हुए हैं तो बच्चा जंक को कंज्यूम करने लगता है। इसलिए हमने सोचा है कि इनिशियल डेज में जब बच्चा 12th पास कर रहा है, बिगिनर है, उस समय मेंटरशिप की खास जरूरत है। वो मेंटर जो काफी एक्सपीरियंस हो, वो मेंटर जो मेंस दे रखा हो, वो मेंटर जो इस परीक्षा में लंबे समय तक अपने आप को लगाया हुआ हो, वो मेंटर मिलेगा उसको और इनिशियल टाइम में उसको अच्छे से गाइड करेगा। नहीं तो आपको भी कुछ टॉपर्स की तरह आपको भी 8 साल 7 साल लग जाएंगे प्रिपरेशन करते करते। रिजल्ट आने में 8 साल का समय लग जाएगा, 7 साल का समय लग जाएगा। इनिशियल टाइम में मेंटरशिप की खास जरूरत है। लेटर टाइम में तो आप खुद भी सब कुछ समझने लगते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में, शुरू के फेज में मेंटरशिप की खास जरूरत है और वो मेंटरशिप फैसिलिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन सेशन एंड मोटिवेशन सेशन। इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हालांकि इंटरव्यू तो हम लोग कहते नहीं है उसको, पर्सनालिटी, इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो पर्सनालिटी की टेस्ट है, वो पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन जरूरी है। चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन करेंगे। टाइम टू टाइम वी विल हैव अ सेमिनार, वी विल हैव अ वेबिनार। सेमिनार भी हम कराएंगे, देश के कोने कोने में हम आएंगे और आपके साथ सेमिनार करेंगे विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट वेरियस फील्ड्स। और उसके बाद से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे, आपके हर चीजों पे काम करेंगे, ताकि कोई ये ना बोल सके कि आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। बैठने का तरीका भी वो पर्सनालिटी का ही पार्ट है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन और अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन। जो एस्पिरेंट जो इस परीक्षा में 2-3-4 साल लगा चुके हैं उनके लिए अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या वो सीएपीएफ की तरफ जाएं, क्या वो ईपीएफओ की तरफ जाएं, या फिर और बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या वो स्टेट पीसीएस का रुख करें? ऐसा बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है? अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है यूपीएससी सीएससी के अलावा? इसको भी हम लोग जो हमारे कैरियर काउंसलर हैं उनके थ्रू डिस्कशन कराएंगे। साथ ही साथ मोटिवेशन सेशन तो खास करके जरूरत है। याद रखो कि जब हम लोग नई नई तैयारी करना शुरू कर सकते हैं उस समय एंथुजियाज्म जो है बहुत हाई रहता है, लेकिन इट फेड्स, ये खत्म होने लगता है जैसे जैसे हम इस प्रिपरेशन जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 6 महीने साल भर होते हैं, इट फेड्स। व्हाई? बिकॉज हमारा कोई इनर मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन हमारा आउटर रहता है, कोई रील देख लिए, कोई शॉर्ट्स देख लिए, वो मोटिवेशन की वजह से हमारा मोटिवेशन जो है हमेशा फेड होने लगता है और इसका ये हमारे प्रिपरेशन को हैम्पर करता है, ये हमारे स्टडी को हैम्पर करता है। तो मोटिवेशनल सेशन भी जरूरी है। टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। ये एक ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा इंजेक्शन है, एक ऐसा डोज है जो टाइम टू टाइम मिले तो हम लोग और बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये लंबा समय है ना, एक मैराथन है, इस मैराथन में हमें लंबे समय तक भागना है और बीच में अगर कहीं भी रुक गए तो हमारे जो साथी हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें लंबा भागना है और लंबे भागने के लिए मोटिवेशन सेशन की भी जरूरत है। जो भी एक्सपर्ट है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। इवन द टॉपर्स जो काफी हार्श बैकग्राउंड से आए हैं, काफी नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं और उन्होंने सिलेक्शन इस एग्जाम में पाई है, उनको हम इनवाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे ताकि आप उनसे भी मोटिवेट हो सके कि भाई उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे सेल थ्रू किया, कैसे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद आज वो इस मुकाम पे पहुंचे, ताकि आप भी रिलेट कर पाए कि आपकी जर्नी तो उनसे काफी बेहतरीन है, उन्होंने तो काफी संघर्ष करके इस मुकाम को पाया है, आप उनसे काफी बेहतर पोजीशन पे हैं और आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दीज आर सम मेजर प्रॉब्लम्स। अभी हमने 11 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है,
मार्क माई वर्ड्स, हमने लगभग 100 प्रॉब्लम्स हमारे सामने थे जब हम ये पॉइंट, जब मैं खुद ही लिख रहा था इसको, 100 प्रॉब्लम्स मेरे सामने थे। लेकिन मैंने कहा कि काफी लंबी बातचीत हो जाएगी, हम इसको सॉर्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम सॉल्यूशन बन के आएंगे, हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसीलिए सिर्फ मैंने लगभग 15 प्रॉब्लम्स ही इसमें नोट डाउन किए हैं। आने वाले समय में जो भी चीजें हमने यहाँ पे बताई हैं, 15 चीजें जो हमने बताई हैं, इससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी शंका हो और आपको लगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे पर्सनल नंबर पे फोन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ये फैसिलिटी आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप मेंटरशिप की फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, ये आप क्लेम कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ये राइट हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने दिया है, वैसे ये 15 राइट हम आपको दे रहे हैं। कोई भी कमी हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपको दिखती है, आप हमारे सजेशन, आपके सजेशन और आपके फीडबैक हमेशा वेलकम है हमारे लिए। हम हार्टली वेलकम करते हैं आपके क्रिटिकल सजेशन को, आपके निगेटिव रिव्यूज को भी हम हार्टली वेलकम करते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट। हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट बनने का। अभी हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, आने वाले समय में हम और बेहतरीन बनेंगे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम दोनों, मैं और आप स्टूडेंट और मैं भी स्टूडेंट ही हूं, हम दोनों कंधे से कंधा मिला के जो है चलेंगे, तभी हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और ये बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा तो आने वाले समय में जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, वो एक ही जगह पे आए, तैयारी करें और वहीं से सिलेक्शन पाए, ताकि कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके फोटो लगा के क्लेम ना कर सके कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। ये ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बन के उभरेगा जहां से बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, टेस्ट सीरीज की तैयारी, मेंटरशिप की तैयारी, सब तैयारी यहीं से करेगा। आने वाले कुछ समय में ये हम करके दिखाएंगे, ये हमारा दावा है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीक्यू, डेली होमवर्क और विद डेडलाइन। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए रखा है जस्ट बिकॉज कि 1750 नंबर जो मेंस के हैं, उसी के बेसिस पे आपके रैंक डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे आपका कैडर डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सर्विसेज डिसाइड होगी। ये तीनों चीज डिसाइड होगी आपके 1750 नंबर पे। जैसा आप लिखोगे वैसा ही अंक पाओगे। तो लिखने की जो प्रैक्टिस है, वो जब भी आप कोर्स में इनरोल करो उसके 1 हफ्ते बाद ही शुरू हो जानी चाहिए। आप बेसिक प्रैक्टिस करो, आप 50 वर्ड में लिखो, आप गलत लिखो, आप कुछ भी करो, लेकिन लिखने की तैयारी आपको डे 1 से तो नहीं, लेकिन डे 7 से जरूर शुरू कर देनी है। डे 7 से आपको जो है लिखने की तैयारी शुरू कर देनी है। 1 क्वेश्चन के साथ आप शुरू करो, 2 क्वेश्चन के आप साथ शुरू करो। इसके लिए भी हमने प्रोविजन अपने वेबसाइट पे दे रखा है। 2 क्वेश्चन हम आपको डेली देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप दोनों क्वेश्चन को लिख के जो है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट करके 2 दिन में आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फील निग्लेक्टेड। व्हाई स्टूडेंट फील निग्लेक्टेड? समटाइम्स टीचर बिकम्स मीन इन क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जैसे ही डाउट्स अपने लिखते हैं तो समटाइम्स टीचर मेक मॉकरी ऑफ द स्टूडेंट कि तुम्हें इतना भी नहीं आता। जैसे मैं अगर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बच्चे ने अगर ये सवाल पूछ दिया कि सर हिस्ट्री क्या है, तो मैं बोलूंगा यार तुम क्लास 6 की बुक नहीं पढ़े क्या, तुम आवर पास्ट 1 नहीं पढ़े क्या, तुम राम शरण शर्मा की बुक नहीं पढ़े क्या, तुम रोमिला थापर की बुक नहीं पढ़े क्या, तुम सतीश चंद्रा की बुक नहीं पढ़े क्या। ये मैं नहीं बोल सकता। मैं क्या बोलूंगा कि बच्चे आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आप जितने लोग ये क्लास कर रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट नोन व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत सारे समय ये क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में जब हम जाते हैं इंटरव्यू में, उसमें पहला अगर हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल तो पहला जो बोर्ड मेंबर है वो यही सवाल पूछता है कि हिस्ट्री क्या है। तो ये मैं इंकरेज करूंगा अपने स्टूडेंट को कि आप ऐसे सवाल पूछो। कोई स्टूडेंट पूछेगा कि एडीबीसी में क्या डिफरेंस है, सर प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, सर एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 हिस्ट्री क्यों बनाया गया है, इसके क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। इस सवाल को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ने इनरोल किया है हमारे कोर्स को, क्योंकि उसको नहीं पता है। अगर उसको पता रहता तो जीएस की तैयारी खुद करता और खुद जाके अपीयर हो जाता एग्जाम में। उसने हमारे कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो सारी चीजों को सीख सके। इसलिए हम स्क्रैच के साथ स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द स्टैंडर्ड, बेसिक टू स्टैंडर्ड। यही हमारे क्लास का कॉन्सेप्ट होगा। आप हर वो सवाल जो सिलेबस से रिलेटेड हो, हर वो सवाल जो किताब से रिलेटेड हो, जो आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, वो सवाल आप पूछ सकते हैं। नॉट ऑन योर व्हीम्स एंड फैंसीज। आप अपने मन के हिसाब से आप कोई भी बेतुका सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जो जेन्युइन और रेलेवेंट जो क्वेश्चन है आप वो हर क्वेश्चन पूछो। सारे क्वेश्चंस वेलकम है आपके।
planned regular portion wise test series are not avoidable, are not available. टेस्ट सीरीज कोर्स में जब आप एनरोल करो उसके बाद से ही प्लान्ड और रेगुलर एक आपको पीडीएफ मिल जाना चाहिए कि कब कब आपके टेस्ट होंगे, कैसे होंगे, वो रेगुलर होना चाहिए, पोर्शन वाइज होना चाहिए, पोर्शन वाइज का मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होना चाहिए। ये भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रहे हैं। मोस्टली फोकस ऑन प्रीलिम्स नॉट ऑन मेंस। ऑनलाइन क्लासेस में एडटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं वो कंटेंट सफिशिएंट है मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, बट नॉट फॉर मेंस। मेंस के लिए आज भी बच्चा ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ही भरोसा कर रहा है। कोई बच्चा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है वो मेंस की तैयारी करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग का ही रुख अपनाता है। ये चेंज करने वाले हैं हम। अब ऑफलाइन में जो बच्चा भरोसा दिखाता था वही भरोसा अब ऑनलाइन क्लासेस में भी दिखाएगा। वो कंटेंट, वो क्वालिटी कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं फॉर द मेंस। आने वाले कुछ समय में फॉर 2027 means we will give that quality content that students are going to qualify with that content only of their mains examination. Last, affordable and quality education. ई को काफी अफोर्डेबल रखा है विद द क्वालिटी कंटेंट, ताकि देश के कोने कोने से हर वो बच्चा, चाहे वो किसी भी तबके का हो, वो बच्चा अफोर्ड कर पाए। इवन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमने स्कॉलरशिप की भी सुविधा रखी है। वी आर गिविंग द फैसिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप, जिसका नाम है कौशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसको भी आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेयर मिनिमम जो अमाउंट है उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप देंगे अप टू 50%। तो क्वालिटी एजुकेशन विद अफोर्डेबल फी, दैट इज महेशन IAS। इट मीन्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू फेस एंड विच वी आर फेसिंग करेंटली। आने वाले समय में भी, और जो फेस कर रहे हैं वो भी। पीछा जो हो गया उसकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी और आने वाले समय की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है महेशन IAS। और आप इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, आने वाले कुछ समय में हम ये रिजल्ट के रूप में ये हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इस प्लेटफॉर्म को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया है फॉर एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रिपरेशन, for every step of this preparation journey, whether it is for prelims, mains, interview, mentorship, test series, anything. Okay, there are many more problems, but till now अभी के लिए जो है हम लोग 15 प्रॉब्लम्स को ही देख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे और उसके भी सॉल्यूशंस हम बताएंगे कि क्या सॉल्यूशंस और हो सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेकिन इस वीडियो में हम काफी लंबा वीडियो हो रहा है तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देयर आर सम अनाउंसमेंट, देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव विच वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट, यस, दिस इज आवर वेबसाइट। ये हमारा वेबसाइट है। आपको सिंपली क्या करना है, आप कभी भी जाओगे गूगल क्रोम पे और आप सिंपली अगर सर्च करोगे यहाँ पे, दैट इज महेशन। आपको सिंपली लिखना क्या है, महेशन। जैसे ही आप महेशन लिखोगे टॉप में सिर्फ हमारा ही वेबसाइट आएगा, दैट इज महेशन IAS। आप सीधे महेशन लिखो, महेशन IAS आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ये संकल्प दिवस और ये कर्मशिला, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, GS फाउंडेशन कोर्स है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे टाइमर चल रहा है, 29 डेज लेफ्ट हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आप मेंटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, टारगेट एग्जाम, मैसेज आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर दो। ये आप मेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, एक पूरा यहाँ पे टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे खुल गया हमारा। उसके बाद से हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से की फीचर्स क्या होंगे इस टेस्ट के, और साथ ही साथ वाई कौशल स्कॉलरशिप। और डेट कौन सा है, 27 जुलाई और 3 अगस्त। ये 2 डेट रखे हैं हमने इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। आप यहाँ पे भी जाकर रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद से क्या है, अगर आप नीचे जाओगे तो ये कुछ की फीचर्स हैं कि वाई यू शुड चूज महेशन IAS। दीज आर द 6 की पिलर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, एक डिजिटल लाइब्रेरी भी हमने बना रखा है, इसमें करंट अफेयर मैगजीन और आपको मॉक टेस्ट, PYQ, ई बुक, हैंड नोट्स, ये सारे जो है आपको इस डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेंगे। उसके बाद से व्हाट आवर स्टूडेंट्स हो, दीज आर सम स्टूडेंट्स, मेरे ये प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जब मैं पहले पढ़ा रहा था तब के ये स्टूडेंट हैं ये हमारे। इनके क्या रिव्यूज हैं ये भी आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जाओगे तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली जो बच्चे पूछते हैं उसके सारे आंसर दिए हुए हैं। और ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब।
आप जैसे ही यूट्यूब पे क्लिक करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल भी ओपन हो जाएगा। आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये पहला वीडियो है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा। आप देखो तो यहाँ पे 20 मई एक डेट लिखा हुआ है। ये 20 मई वो डेट था जिस दिन हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के बारे में सोचा था। तो भी इसका टाइटल हमने रखा था संकल्प दिवस, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे, कुछ और रिसर्च करना चाह रहे थे और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आना चाहते थे, इसलिए हमने 2 महीने डिले किया। जून का महीना लिया, जुलाई का महीना लिया, और आज हम लगभग 23-24 जुलाई के डेट पे खड़े हैं। और आज जो है 2 महीने बाद हम इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इसमें जाओगे तो आप ऊपर अगर देखोगे, ये हमारा अबाउट अस सेक्शन है, और अबाउट अस सेक्शन में ये हमारे एकेडमी के बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमारे जो हम दोनों फैकल्टीज हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं, उसको हम रिवील करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी के लिए जो है हम ये 2 फैकल्टी जो है यहाँ पे हैं। 3-4 फैकल्टी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पास मनीष सर हैं, सौरभ सर हैं, अखिलेश सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के। दे हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ और भी यूपीएससी में भी मेंस इंटरव्यू दे रखा है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए 2 हमारे जो फाउंडर्स हैं, मैं शांतनु राज, योर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस महेशन आईएएस प्लेटफॉर्म, एंड अलॉन्ग विद माय को-फाउंडर एंड सीएमडी महेश राजपूत, ये 2 हैं। और इन दोनों के जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है, मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर हमने दे रखा है यहाँ पे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके आप कोई भी सजेशन जो आप हमें देना चाहते हो, अपना नाम, मोबाइल नंबर और योर मैसेज डाल के आप यहाँ पे सेंड मैसेज करोगे, आपके सजेशन और आपके फीडबैक हमारे तक पहुँच जाएंगे। कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है। इनके लॉन्च डेट है 18 अगस्त। 18 अगस्त से पहले आप इनको इनरोल कर लेना है। आप देखोगे तो कर्मशिला है हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स, ज्ञानशिला है, ये हमने थीम रखा है। कर्मशिला हमारे यूपीएससी का थीम है, ज्ञानशिला यूपीपीसीएस का थीम है, और आधारशिला हमारा एनसीईआरटी का थीम है। और नीचे आप जाओगे तो ध्रुवशिला जो है वो हमारा बीपीएससी का जो है थीम है, और दीक्षा मेंटरशिप का प्रोग्राम है। बैच सारे अलग अलग है। कौटिल्य बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे। ऊपर जाओगे तो ये हमारा द्रोणा यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी का कोर्स है। ये सारे कोर्सेस 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे, और बाई नाउ पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे पेमेंट करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में भी अभी हमारे पास बीपीएससी के टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज और यूपीएससी के टेस्ट सीरीज। सामर्थ्य टेस्ट सीरीज ये हमारा यूपीएससी का है, और वैसे ही यूपीपीसीएस टेस्ट बूस्टर जो है वो हमारा 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये यूपीपीसीएस के लिए है और ये बीपीएससी के लिए है। इसकी फी भी काफ़ी मिनिमल है, बहुत ही हमने अफोर्डेबल फी रखा है। 1499 का हमारा बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, 1999 का हमारा यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है। वैसे ही अगर आप जाओगे डिजिटल लाइब्रेरी में, तो डिजिटल लाइब्रेरी में भी बहुत सारे इसको परचेज करना है आपको। कैसे? 499 रुपीज़ में आपको इसको परचेज करना है। एक बार आप इसको परचेज कर लोगे, उसके बाद से हमेशा के लिए आप इसका एक्सेस ले सकते हो। इसमें क्या है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जनरल स्टडी, जितने भी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स आएंगे वो सारे इस लाइब्रेरी में रहेंगे। आप यहाँ से उसका एक्सेस कर पाओगे। रिसोर्सेज में जाओगे तो आप करंट अफेयर में भी अगर जाओगे तो करंट अफेयर भी आप यहाँ से डेली पढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं इस करंट अफेयर को यहाँ पे खोल के आपको दिखाऊं, करंट अफेयर आप कैसे पढ़ोगे? ये डेली कैप्सूल रखा है हमने नाम इसका। डेली कैप्सूल के रूप में जो है आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा, और इसमें जो है आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसको हमने रखा है डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ये सारा जो है होलिस्टिक कवरेज होगा आपका डेली करंट अफेयर का, ये भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। ठीक है। एक ये औसर प्रोग्राम है। औसर प्रोग्राम के बारे में हम लोग नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। ये औसर प्रोग्राम क्या है? लर्न विद अर्न का कॉन्सेप्ट है। ये कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम हमने बनाया है लर्न विद अर्न का कॉन्सेप्ट के साथ। आप एक बार इसको पढ़ना। नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आएंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ही डिटेल्ड आपके साथ डिटेल्ड में इसके बारे में बात करूंगा, और इसके सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स आप एक बार इसको देखना, एक बार अच्छे से पढ़ना। आप वेबसाइट पे जाके, महेशन आईएएस के वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे औसर प्रोग्राम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं। ये अप्लाई नाउ करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करके सबमिट एप्लीकेशन करना है, सिंपल सा। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियोज में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ।
हम लोग सेपरेट ओरिएंटेशन लाएंगे हर एक कोर्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी का कोर्स हो, बीपीएससी का कोर्स हो, या फिर यूपी पीसीएस का कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर मेंटरशिप हो। फॉर ईच एंड एवरी कोर्स वी विल हैव अ सेपरेट ओरिएंटेशन। साथ ही साथ हम लोग और भी कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। आज के वीडियोज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए आपको जो भी सजेशन है, आपके जो भी कमेंट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम उसका जो रिप्लाई है वो जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी बताएं हमें कि और हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम और बेहतर कुछ चीज़ें ला सकें। आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन, अपने फीडबैक जरूर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। देयर आर सम फ्री इनिशिएटिव जो कि आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो फ्री इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो हम यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल सके, जो करंट स्टूडेंट है उनको भी फायदा मिल सके, जो यूपी पीसीएस बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के एग्जाम आने वाले हैं अक्टूबर में, सितंबर में, उसमें भी बच्चों के लिए क्या क्या हम बेहतरीन तरीके से क्या ला सकते हैं, इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर का जो 2026 का जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। तो इन सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले समय में जो भी क्वालिटी कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा होगा उन सारे प्लेटफॉर्म का जो है, सारे वीडियोज का जो है आपको नोटिफिकेशन तुरंत का मिल जाए और तुरंत मिलते ही आप उसको देख के जो है उसका बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई शांतनु राज साइनिंग ऑफ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।